حسن ابن علی سے کہیں کہ مسکن کی فکر نہ کرے. ہم ہندا کے بیٹے کا راستہ بند کر دیں گے تاکہ وہ ہم سے ملحق ہو جائے. کہو کہ بہت سارے مومنین ان کے ساتھ ہیں. خدا حافظ بور. خدا حافظ. خدا حافظ. قیس ادھر آؤ. سنو ادھر آؤ. کدھر؟ سردار آپ کو معلوم ہے 2 آدمی گڑھے میں چھپے ہوئے ہیں. کہاں؟ وہ سب سے پیچھے تھے اور اچانک لشکر سے جدا ہو گئے. کہاں کے رہنے والے ہو؟ کوفہ. تمہارا کیا کروں؟ تم جیسے بزدلوں کا خون میری تلوار بھی قبول نہیں کرے گی. اٹھو اور اپنے گھروں کو جاؤ. جی اچھا. چلو چلو چلو. دیکھو آگے. چلو چلیں. چلو آ جاؤ سب. چلے آ جاؤ. چلو استقبال کو چلتے ہیں. سلام ابن عباس. آگے خیریت سے.
लोग आमादा रहें, ज़रा और लिबास जिस्म से न उतारें। इमाम हसन इब्न अली की आमद तक हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर हमला हो गया तो दिफा करेंगे। गारतगर और जासूस को फरामोश न करना। किसी को हक नहीं है कि छावनी में दाखिल या खारिज हो। कोई इत्मीनान बख्श गिरोह बनाओ और छावनी की दाखिली हिफाजत कड़ी कर दो। मशकूक लोगों की शिद्दत से निगरानी करो, और अगर कोई फितना अंगेज इरादा रखता हो तो उसे फौरन गिरफ्तार करो। गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। سلام 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 उनकी तादाद हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा है। कम अज कम 50,000। माविया ने इतने सिपाही जमा कर लिए हैं कि मैंने अब तक नहीं देखा। सारे कबाइल के सरदारों को सोने के सिक्कों से खरीद लिया है। हमसे 5 गुना ज्यादा हैं। हमारा एक उसके 5 को वासिर जहन्नम करेगा। इमाम की मदाइन से आने तक हम जंग नहीं करेंगे, और एक इत्मीनान बख्श खासियत की जरूरत है जो मदाइन पहुंच सके। अगर आप इजाजत दें तो मैं चला जाऊं। ठहरो, हमें हसन इब्न अली को नामा लिखना होगा यहाँ के हालात के बारे में। अभी फौरन जा सकते हो। जी, रातों रात दौड़ लगानी होगी। मौला की खिदमत के लिए मुझे रात और दिन की परवाह नहीं है। दिल से हम कामयाब होंगे, उनकी तादाद हमसे 10 बराबर क्यों न। अम्र, आओ तुम्हें बताऊं क्या क्या हुआ। कह दो हमारे सब जासूसों और डाकुओं से कि जो भी हमारे उस जिंदान बान को पकड़ के लाएगा उसे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। अम्र, आओ मेरे साथ। क्या हो गया अमीर? क्या इब्न आसिम से तुम्हारा कोई खास रिश्ता है? नहीं। अच्छा, तो फिर परेशान क्यों हो? अम्र, नहीं जानता। जब हसन इब्न अली मेरे मुकाबले में आए तो मैं जानता हूं कि क्या करना चाहिए।
صبر کروں گا، تحمل کروں گا اور لڑوں گا، جاسوس اور غارتگر اس کے خلاف روانہ کروں گا، ہزاروں مکر و فریب کا سہارا لوں گا تاکہ کامیاب رہوں۔ لیکن جب میرے زندان بان نے مجھے اس طرح دھوکہ دیا تو میں حیران ہوں، میں کیا کروں؟ یہ میرے برداشت سے باہر ہے۔ جی چاہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھوں کے ڈھیلوں کو باہر نکال لوں۔ کس طرح ہمارے محل میں مقام حاصل کیا، ہمارے چاہنے والوں پر سکہ جمایا اور زندان بان بن گیا۔ حسن ابن علی کے جاسوسوں کو محل کے اندر لایا اور فرار ہو گیا، اور اب میرا مذاق اڑا رہا ہے، ہمارے جاسوسوں کی گردن اڑا رہا ہے، ہمارے لشکر کے سردار کو اغوا کر کے پیغام کے ساتھ میرے پاس بھیجتا ہے۔ میرے اجداد کی قسم، جب تک اپنے ہاتھوں سے اس کا خون نہ بہاؤں میں سکون نہیں لوں گا۔ ہاں میں جانتا ہوں ملازموں کی سرکشی کو برداشت کرنا بڑا سخت کام ہے، لیکن امیر، ہمیں اس سے زیادہ اہم مسائل درپیش ہیں۔ سنو امیر، عبید اللہ ابن عباس اپنے لشکر کے ساتھ مسکن پہنچ چکا ہے، اور اب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ حقیقت میں اسی نقطے پر ہمارا اور حسن ابن علی کی فوجوں کا آمنا سامنا جنگ کا فیصلہ کرے گا۔ عبید اللہ ابن عباس کے ساتھ اب ہم کیا چال چلیں؟ نہیں معلوم، یہاں میں بہت مجبور ہوں۔ جانتا ہوں کہ اس سے لڑنا کوئی اچھی بات نہیں، لیکن کس طرح کی سازش کروں میری عقل کام نہیں کرتی۔ سوچوں گا۔ عبید اللہ کا مسئلہ ایک انوکھا مسئلہ ہے، اسے سونے چاندی کے سکوں اور منصب سے نہیں خریدا جا سکتا۔ وہ بنو ہاشم سے ہے اور حسن ابن علی کا چچا بھائی ہے، اس کے لشکر کا سردار بھی ہے۔ اس کے دل پر ایک ایسا زخم ہے جس کا مداوع کسی مرہم سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تم نے اس کے 2 بیٹوں کو قتل کیا ہے۔ اے کہاں جا رہے ہو؟ مجھے جانے دو امیر، میں کچھ سوچوں گا۔ اٹھو اٹھو ہندا کے بیٹے، اب مجھے حل مل گیا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے عمر؟ کیا ہے عمر؟ اٹھو تو، مجھے حل مل گیا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ کس طرح عبید اللہ ابن عباس گھٹنے ٹیکے گا۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ مقابلہ کس طرح بغیر خون ریزی کے تمام ہوگا۔ بلاؤ اپنے مشاورین کو۔ کہاں ہیں تمہارے جاسوسوں کے سردار؟ ہیں کچھ یہی ہیں، کچھ بکھرے ہوئے ہیں۔ اپنے جاسوسوں کے ساتھ اچھا رابطہ ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ ابن عباس کے لشکر میں بھی؟ ہاں مدائن میں بھی؟ ہاں، تمہارے بلوائی کیا کر رہے ہیں؟ پھیلے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ ہیں۔ ان سے تمہارا رابطہ ہے؟ ہاں
بہت اچھا. تمہارے ملازموں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ تو پھر سب کو حکم دو کہ جسے چاہیں جیسے چاہیں مار ڈالیں، خواہ عبید اللہ کی چھاونی میں ہو یا مدائن میں. کن لوگوں کو مار ڈالیں؟ مہم نہیں ہے، بس جو بھی ہاتھ لگ جائے، جہاں لگ جائے وہیں مار ڈالا جائے. مگر سردار، ہمارے جاسوس اور لٹیرے ایک دوسرے سے بے خبر ہیں اور ممکن ہے کہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں. جائے جہنم میں، مار لینے دو. حکم وہی ہے جو میں نے دیا، جو ہاتھ لگے اسے امان نہ دینا. عامر، یہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیسا حکم دے رہے ہو؟ کیا تمہیں عبید اللہ نہیں چاہیے؟ کیوں نہیں؟ پھر حکم دو کہ جو کچھ میں نے کہا اس کا اجرا کریں. ایسا کام کروں گا کہ عبید اللہ کچھ ہی مدت میں حیران و پریشان سر تسلیم خم کیے ہوئے تمہارے پاس ہوگا. پھر فوری اجرا کریں. جو امر کہے انجام دو. بس جاؤ. اب بتاؤ کہ تمہارے دماغ میں کیا ہے یا نہیں؟ اب فوراً قاصد کو کوفہ روانہ کرو، تمہارے اس آدمی کے پاس. کیا نام تھا اس کا؟ عامر ابن حریث. ہاں، عمرو ابن حریث. فوراً ایک قاصد کو کوفہ روانہ کرو اور اس سے کہو کہ کوفہ کے بزرگوں، سرداروں اور قبائل کے رئیسوں سے تمہاری حمایت میں اور حسن ابن علی کی مخالفت میں ایک خط لکھے اور فوراً یہاں بھیج دے. کیا خوارج نے حسن ابن علی کی بیعت کر لی ہے؟ ہاں. تو فوراً ایک خط خوارج کو بھی لکھ دو اور ان سے کہو کہ بلا تأمل اپنے سردار کو مدائن بھیجیں اور ہمارے حکم کا انتظار کریں، تاکہ صرف اشارہ پاتے ہی بلوا و فساد برپا کر دے اور مدائن کی چھاونی کو آگ لگا دے. نہیں سمجھ سکا تمہارے دماغ میں کیا ہے. سمجھ جاؤ گے، جلد سمجھ جاؤ گے. السلام علیکم بھائی، ٹھیک ہو نا؟ تھکے تو نہیں؟ ہاں، سلام. سلام. ہوشیاری سے. ارے مار ڈالا! تم لوگ کہاں ہو؟ ارے ایک ساتھی کو اور مار دیا! ارے کس نے مارا؟ ارے کیا ہوا؟ کیا ہو گیا ہے؟ یہ شور کیسا ہے؟ جاؤ دیکھو کیا ہوا ہے. چلو جاؤ. کیا ہوا؟ جاؤ، تم بھی جاؤ، جا کے دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے. جاؤ دیکھو کیا ہوا ہے. ان کا کیا جرم تھا؟
सिपाहियों को गल्ला और चारा देने से इनकार कर दिया था। अमरास, अमीर के सरदारों पर सलाम। आखिर तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? अजब, अमीर के सरदार आखिर खेमे से बाहर क्यों खड़े हैं? अमीर अभी सो रहे हैं और कुछ ऐसे मसाइल पेश आ गए हैं जिनसे अमीर को बाखबर करना जरूरी है। तुम्हारी दिहाड़ी मैं लूंगा। अगर अपनी दिहाड़ी मुझे देते हो तो फिर मैं अमीर को नींद से उठा सकता हूँ। हमारे पास जो कुछ भी है सरदार का ही तो है। वल्लाह सरदार, तेरी सखावत तो शुजाअत से भी ज्यादा है। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि मरवान अमीर के सोते रहने को बेदार होने से बेहतर समझता है, और ये शहजाद भाई हाजिर है कि जो कुछ है वो दे दे, बस अमीर जागने ना पाए। नहीं मालूम कौन सा मंत्र पढ़कर अमीर पर फूंक दिया है, जब चाहता है अमीर से जाकर मिल लेता है, और हम अगर जरा सा काम है तो घंटों खड़े रहे यहाँ धूप में। मेरे भी समझ में नहीं आता हम क्या करें। ना तो उसकी बातें संजीदा होती हैं कि हम भी जवाब दें, और ना वो मजाक करता है कि हम हंसे। अब अमीर से मिल सकते हो। अमीर अल मोमिनीन सलामत रहे। अमीर हमेशा खुश रहें। सलामती हो अमीर उल मोमिनीन की। मैं नहीं समझ सका कि जब भी तुम तीनों मुझे अमीर अल मोमिनीन कह के खिताब करते हो तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी मुराद मैं नहीं हूं। उसकी इल्लत ये है कि खुदा अमीर को मालूम है कि उसके सरदार खूब इस बात पर अकीदा नहीं रखते। बोस, अमरास बाहर इंतजार करे। मैं अपने खेमे में हूँ, जब जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। बोस, सरदार हमारे खेमे के बाहर इंतजार करे। बताओ क्या खबर है? हमारे जासूसों ने खबर दी है कि अब्दुल्लाह इब्न याकूब रास्ते में है और किसी भी वक्त मस्कन पहुंच सकता है। कब तक पहुंचेगा? कल तक। कितने लोगों के साथ? 5000, जिनमें से 3000 घुड़सवार हैं। बस वक्त पे पहुंच जाए। आमिर इब्न हुरैस ने कासिद भेजा है। उसने लिखा है कि शिम्र, अशअस और इब्न उमैर ने अमीर की इताअत और बंदगी का ऐलान किया है। ये नामर्द लोमड़ी सिफत। अली को मार डाला, अब मेरे कत्ल की साजिश है। हसन इब्न अली को हमसे जंग पर मजबूर करते हैं, और जब जंग की बू आती है तो बंदगी का ऐलान कर बैठते हैं। इनके बारे में तो कुछ समझ में नहीं आता। इस मामले में तो अमरास से मशवरा करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उसी से काम हो सकता है। बस हसन इब्न अली ने उस जासूस को कत्ल करके हकीकत में मुझे रुस्वा कर दिया। अमीर, मैं एक चाल चलना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो। चाल? कैसी चाल? जंग की चाल। जंग? कौन सी जंग? हसन इब्न अली के साथ जंग। किसने कहा है कि हम हसन इब्न अली के साथ जंग लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे मेरे सरदार बुजुर्ग, मेरे चचा की औलाद मरवान बिन हकम। तुम उस तजुर्बे को फिर से आजमाना चाहते हो? तुम जंग जमल में नहीं थे? मैं था उसमें। क्या हुआ? हम हार गए। तो सिफीन में क्या हुआ? उसमें भी था। क्या हुआ? खुदा बेहतर जानते। जंग में शिकस्त हुई। बात जाकर हकमियत पे रुकी। वो चाल मैंने और अमरे आस ने सोचा था। खवारिज धोखा खा गए
और इब्न अबी तालिब को जंग रोकने पर मजबूर कर दिया। क्या ऐसा नहीं था? जी ऐसा ही हुआ। तो ये जंग नहीं थी जिसने हमें नजात दी। अगर जंग किए होते तो न तुम होते और न मैं और ना ही किसी का नाम निशान। क्यों? हो सकता है अमीर। हो सकता है नहीं, हुआ है। अब तुम दोबारा तजुर्बा करना चाहते हो। इस बार हम अली से नहीं लड़ रहे हैं। इस वक्त जो हमारा मद्दे मुकाबिल है वो हसन इब्न अली है। हसन इब्न अली को क्या समझा है? सिफ्फीन में नहीं देखा उसने और उसके भाई हुसैन ने क्या किया, किस तरह तलवार चलाई। हम में से कौन उसका हरीफ बन सकता है? तुम, मैं, ज़हाक, मुगैरा या वो छोटा शैतान अमरयास? अगर हमें मुबारजे के लिए बुलाएं तो तुम उनका मुकाबिला करोगे? बिल्कुल करूंगा। अहमक हो। ये वैसी ही गलती है कि ताकत के नशे में चूर अम्र इब्न अब्दवद ने की, लेकिन उसकी लाश मैदान में बाकी रह गई। अगर मैं और अमरयास अब तक जिंदा हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमने उसका सामना नहीं किया। अली ने हमें सिफ्फीन में जंग के लिए बुलाया और मैंने कबूल नहीं किया, वरना बनी उमैया की शैतानत का बोरिया बिस्तर हमेशा के लिए कब का बन चुका होता। बेशरम, हम मजबूर हैं अपनी बका के लिए हकीकत को कबूल करें। उसके मुकाबले का वाहिद रास्ता बस फरेब और धोखेबाजी है, और वो भी कि जिस तरह अमरयास समझता है। अब सुनो, बावजूद इसके कि अमरयास इतना खबीस व मक्कार व चालबाज, बेहुदा लालची और हद से तजावुज करने वाला बदतमीज है, लेकिन नहीं मालूम फिर भी मैं उसको क्यों चाहता हूं। हसन इब्न अली पूरी तरह से जंग चाहता है, लेकिन हम हैं कि इस वक्त सुलह की आवाज उठाना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अमरयास ने सिखाया है। अब जाओ और लश्कर को संभालो ताकि सुलह उसी तरह अंजाम पाए जैसा मैं चाहता हूं। अमरयास से कहो कि आ जाए। जाओ, अमीर का बुलावा है। क्यों, किस लिए? नहीं मालूम। तुमने क्या मुझे कह क्या दिया जो अमीर चीख रहा है? अगर अमीर मुनासिब समझे तो वो खुद तुम्हें बता देंगे। तुम लोगों ने अमीर की सुबह बर्बाद की होगी और अब मैं उसका जुर्माना अदा करूं? किस जुर्माने की बात करते हो सरदार? हाकिम मिस्र खुद अच्छी तरह जानता है कि इन मसलों से कैसे निपटा जाता है। हाँ, अब से अमीर के नालायक सरदारों के मसले भी मुझे ही निपटने पड़ेंगे। मैं खत लाया हूँ अमीर अल-मोमिनीन मुआविया की जानिब से इब्न अब्बास के लिए।
मेरी तरफ से हिंदा की औलाद से कह दो कि इमाम वक्त से बगावत करने वाले से गुफ्तगू करना हराम है। जाओ। सलाम, आइए। आम्र, क्या बात हो गई है? सुना है कि माविया की तरफ से कोई कासिद आया है। अमीर ने तुम सबको माफ कर दिया है और साथ में इनाम देने का वादा भी किया है। क्या? नहीं मालूम। और साथ में हुक्म दिया है कि तुम में से एक मदाइन जाए और उनके फरमान का इंतजार करे। नहीं बताया है कि कब? अपने वक्त पर। लिखा है कि वक्त आने पर बता दिया जाएगा। इब्ने उमैर, मैं कूफे में रहूंगा। अशस भी जोधा और हसन इब्ने अली के घर में रहेगा। तुम जाओ। और हाँ, हमसे कहा है कि तमाम कबाइल के बुजुर्ग और रुअसा शुरफा उनकी हिमायत में और हसन इब्ने अली से बेजारी के खतूत लिखें और मस्कन की जानिब इरसाल करें। और तुम भी इसमें हमारी मदद करो। मेरी तरफ से अमीर को लिख देना कि अगर हसन इब्न अली कूफे में कदम रखें तो उन्हें 10 बस्ता अमीर के हवाले कर दूंगा। अच्छा भाई, लिख देता हूं। मेरी तरफ से भी लिख दो। ठीक है। और ये भी लिखो कि उर्वत इब्ने उमैर अमीर के हुक्म पर अमल करते हुए फौरन मदाइन की तरफ चल पड़ा। ठीक है, लिख दूंगा। तुम बिल्कुल मुतमईन रहो। अम्र, तुम कोई ऐसा काम करो कि पिसर अबू सुफियान हमारी वफादारी पे एतमाद करे और पुराने कीनों को भूल जाए। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, सिर्फ अमीर के हुक्म की तामील करो। खुशामदीद अहमद, बाबा क्या कर रहे हैं? ठीक है, तुम्हारा क्या हाल है याकूब? सफर कैसा रहा? सफर अच्छा था। अच्छा, हर्ब क्या कर रहा है? शरारतें कर रहे हैं। उबैदुल्लाह की तरफ से खत लाया हूँ। तो लाओ, हसन इब्न अली का खेमा यहीं पर है। क्या बात है? लगता है हालात ठीक नहीं। जासूस पकड़ा गया है। यहाँ भी? हाँ, माविया के लोग मुसलसल फितना फैला रहे हैं।
ये कैसी जंग है, कैसी जंग। अम्र, क्या ये फरियादें हसन इब्ने अली की अफवाज के दिल हिला सकती हैं? सबकी नहीं, लेकिन बुज़दिलों को ज्यादा मुस्तरब कर देंगे, और जो वहम शक में मुब्तला हैं उनके कदम उखड़ जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि उबैदुल्लाह भी हमारी तरफ कदम बढ़ाएगा। सिर्फ उबैदुल्लाह नहीं, उबैदुल्लाह ही हमारी कामयाबी का राज है। उसे धोखा व फरेब के जाल में फांस लो, फिर हसन इब्ने अली के चाहने वालों के बस की बात नहीं। रात में लोगों पे हमले, शब खून क्यों नहीं करता? रूबरू मुकाबला हो। ये कैसी जंग है सरदार? अपने साथी पर भी एतबार नहीं किया जा सकता। भाई भाई पे एतबार नहीं कर सकता। आंखें बंद करो तो जासूस और गारती कत्ल करने के लिए आ जाते हैं। हमारा भी तो सोचो सरदार। हैरान हूं कि क्यों पिसर अबू सुफियान शब खून नहीं मारता। अगर इसी तरह हमले होते रहे तो कोई सिपाह नहीं बचेगा। जाओ सो जाओ सरदार, 3 रात से सोए नहीं हो। कैसे सो जाऊं? वो लोग अपनी जान के खौफ से जाग रहे हैं और मैं उनकी जान के खौफ से जाग रहा हूं। कल रात 10 आदमियों को मार डाला था, उससे पहले 20 आदमियों को मार दिया था, और आज रात का खुदा जाने। हमारी समझ में नहीं आता ये कैसी जंग है। कौन है? पकड़ लो, छोड़ना नहीं, मार डालो। मुझे छोड़ दो, मैं जासूस नहीं हूँ, मैं जासूस नहीं हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ दो। सरदार ये पीछे से मेरे करीब आ रहा था, मुझे यकीन है ये मुझे कत्ल करना चाहता था। सरदार ये झूठ है बिल्कुल। मैं तो वजू के लिए पानी की तरफ जा रहा था कि अचानक ये सब के सब मेरे ऊपर टूट पड़े। बेईमान लुटेरा, मार दो इसे। छोड़ दो उसे। छोड़ दे उसे? किस लिए सरदार? छोड़ दे उसे ताकि फिर हम पे हमला करे। तुम्हारे पास क्या दलील है कि वो गारतगर है? दलील मांगते हो सरदार? पिछले दिनों के कत्लो गारत से बढ़कर क्या दलील चाहिए तुम्हें? कहता हूं उसे रिहा कर दो। नहीं सुना सरदार ने क्या कहा? छोड़ दो उसे। चलो चलो चलें, आ जाओ, चलो। इसका क्या करें सरदार? जाने दो।